Hello everyone, welcome to your physics class and my today's topic is limitations of dimension analysis. Student, the first point is dimensionless constant in a physical formula cannot be determined. For example, when you take this relation t is equal to 2 pi root L over g, then you can never find out this constant, okay, by using dimension analysis. You only get a constant this k L over g, root over L upon g. Okay, this is the failure. The second, it cannot be determined relations involving. Students, इसका एक example और हो सकता है kinetic energy E is equal to half mv square. When you derive the relation of this energy, okay, with other physical quantities, mass and velocity, okay, you only get Ek is equal to mv square, but this is not the correct relation, okay. तो this is the failure of dimensional analysis. इसी तरह से students, जो इसका second point है, it cannot be derived relations involving trigonometrical and exponential functions. Means अगर कोई relation है जिसमें cos थीटा, sin थीटा and tan थीटा या e to the power x exponential function या log of x, इस तरह के functions अगर उसमें involved हैं तो you cannot find out that relations, okay, by using dimensional analysis. इस तरह से students, it cannot be derive a relation if the physical quantity depends upon more than 3 physical quantities. Students, आप सिर्फ उन्हीं physical quantity को आप ड्राइव कर पाते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस जो 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं. अगर 3 से ज़्यादा या मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन नेवर फाइंड आउट द रिलेशन. जैसे सपोज करिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी Q1 इज इक्वल Q1 प्रोपोर्शनल है x y, यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन. If Q2 is proportional x y z, you can find out the relation. If this Q3 depends on K, L, M, N, you can never find out this relation because there is a limitation, okay, there is a limit of this dimensional analysis. It can never find out the relation if the physical quantity depends more than 3 other physical quantities, okay. इस तरह के relation को आप find out नहीं कर पाते हैं जिसमें physical quantity 3 से ज़्यादा physical quantity पर depend करती है, ठीक है. जैसे स्टूडेंट्स अभी तक आपने रिलेशन फाइंड किया था, t का रिलेशन फाइंड किया था 2 पाई l अपॉन g. यहाँ आप देख रहे हैं कि दिस t डिपेंड्स ऑन 2 फिजिकल क्वांटिटीज l एंड g. और आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है या सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है F c इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r. तो यहाँ आप देखेंगे m v एंड r 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं. F c 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पर और r पर डिपेंड करता है, ठीक है. इस रिलेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी हैं, तब आप उसको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. ये इसका एक फेलियर है. स्टूडेंट्स, के बाद हम आते हैं इट कैन नॉट ड्राइव द रिलेशंस अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस. स्टूडेंट्स, आप इस तरह के रिलेशंस को ड्राइव करते हैं mv स्क्वायर अपॉन r. तो दिस इज द रिलेशन एक्चुअली विच इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस. But if you have given a relation v is equal to u plus at, you cannot find out this relation by using dimensional analysis because on left hand side it having two terms, okay. So the relation which having only a single term on the left hand side, you can find out that relation by using dimensional analysis. तो इस तरह के relations को आप find out नहीं कर पाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा term होते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 term हो गए, तो आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सिर्फ आप सिंगल टर्म्स के रिलेशंस को फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है. इस तरह से स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं इफ द डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस. स्टूडेंट्स, ये एक फेलियर है, इसमें इंपॉर्टेंट भी है. जैसे यहाँ पर एक डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है ml2t-2. आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला वर्क का ही है, क्योंकि ये एनर्जी का भी होता है और ये टॉर्क का भी होता है, तो यूनिक नहीं होता है. कोई भी डायमेंशनल फार्मूला अगर मालूम है आपको, किसी फिजिकल आपको डायमेंशनल फार्मूला मालूम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस डायमेंशनल फार्मूले के वो किसी एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द फेलियर एक्चुअली ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस. क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? उससे पहले आपको स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए लीस्ट काउंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, ओके. जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जब हम टूल्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स अब तक आपने जो है बचपन से अब तक, ओके, आपने इस स्केल के बारे में जाना है, ठीक है. ये एक ऐसा टूल है जो कि आप
लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस स्केल में एक्चुअली ये मीटर स्केल है और इस स्केल के एक साइड में सेंटीमीटर स्केल होता है और अदर साइड में जो है वो स्केल होता है इंचेस में स्केल होता है, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 10 डिविजन्स एक्चुअली, और 1 डिवीजन का साइज क्या होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ 1 डिवीजन, दैट इज 1 mm। तो स्टूडेंट्स आप मिनिमम जो लेंथ आप इससे मेजर कर सकते हैं वो 1 mm लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, 1 mm से कम लेंथ को आप इससे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस स्केल की एक लिमिट है कि इस स्केल के थ्रू आप 1 mm लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिनिमम लेंथ विच इज मेजर्ड बाय दिस मीटर स्केल, ओके। तो दिस मिनिमम लेंथ एक्चुअली इज नोन एज द लीस्ट काउंट एक्चुअली, या मिनिमम मेजरमेंट या कम से कम जो लीस्ट मेजरमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा उसको आप लीस्ट काउंट कहें, ठीक है। दैट कैन मेड एक्यूरेटली बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, ओके। जैसे एग्जांपल दिया है मीटर स्केल का एग्जांपल, डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी मीटर रॉड इज करेक्ट अप टू 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 mm होगा या फिर 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन स्केल। तो स्टूडेंट समझ में आ गया लीस्ट काउंट क्या होता है। इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स आप जो प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है एक्चुअली दैट विल बी 0.01 सेंटीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर्स का स्केल होगा। इस तरह से स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको भी हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा एक्चुअली दैट विल बी 0.001 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के 1 प्लेस तक आप देखते हैं कि आप डेसिमल के 1 प्लेस तक आप मेजर कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस ऑर्डिनरी स्केल, ऑर्डिनरी मीटर रॉड, यू कैन मेजर द लेंथ अप टू 1 decimal place, okay. Similarly students, by using vernier calipers you can measure up to 2 decimal place, and by using screw gauge you can measure up to 3 decimal place, okay students. The topic next है वो significant figures actually. So significant figures are what? The number of significant figures obtained in a measurement depend upon the least count of measuring instrument. Larger the number of significant figures, greater is the accuracy of the measurement. जो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली हैं वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जैसे आप देख रहे हैं जो ऑर्डिनरी स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है 0.1, उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज व्हाट एक्चुअली ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इन दिस लीस्ट काउंट। इस तरह से हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर कैलिपर्स में देयर आर आल्सो we measure the actually value up to 2 decimal place। तो डिपेंड करता है कितने डेसिमल प्लेस तक आप मेजर करते हैं। यहाँ पर हम 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स होंगे वो इसमें कम होंगे एक्चुअली, और ये प्रिसिजन में वैल्यू आपको जो वैल्यू मिलती है ओके वो कम प्रिसाइज होती है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में आप देखते हैं कि वो 2 डेसिमल प्लेस तक आप इसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें जो वैल्यू आती है वो इससे भी कम होती है, जो लेंथ वैल्यू आपको मिलेगी वो वर्नियर कैलिपर्स के केस में वो इससे भी कम होगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम स्क्रू गेज की बात करते हैं उसमें वैल्यू और कम मिलती है आपको। तो इस तरह से ये जो डेसिमल प्लेस के डेसिमल पॉइंट के जितने ज़्यादा प्लेस तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं, किसी भी लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है, वो वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज होती है, ठीक है, और उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हम कैसे हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, आई विल डिस्कस लेटर। तो फर्स्टली यू शुड नो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो डिजिट्स आपको मिलते हैं, जो वैल्यू आपको मिलती है, जैसे सपोज करिए 5329, ये एक आपको वैल्यू मिलती है किसी मेजरमेंट में, ठीक है। तो हियर आर 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हियर आर 4 डिजिट्स एक्चुअली 1 2 3 4। तो दीज आर द सिग्निफिकेंट figures, these are the significant digits of this value. So students, significant figures actually the number of digits in a measurement about which we are certain and plus one additional digit which is uncertain are known as significant figures. इसमें आप देखेंगे जब कोई भी मेजरमेंट आप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर,
एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ आपको मेजर करना है, ठीक है, और इस लेंथ को मेजर करने के लिए आप एक स्केल का, ऑर्डिनरी स्केल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी स्केल का 0 आप प्लेस करते हैं, देयर आर टू एज एक्चुअली, दिस इज एज ए एंड दिस इज एज बी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका, ठीक है, जिस पर आप मीटर स्केल को मीटर स्केल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मीटर स्केल का जो 0 पॉइंटर है उसको आप एज ए पर प्लेस करते हैं, ठीक है। आपने मीटर स्केल का 0 यहाँ पर प्लेस किया है, दिस इज अ 0 ऑफ दिस मीटर स्केल, ठीक है, और दिस इज एट एज ए। तो इस तरह से आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay students, this is a centimeter scale, so this 0 and 1 centimeter, and this is 2 centimeter, this is 3 centimeter, and this is 4 centimeter. What you see students, when you measure this length from A to B, then you see that the value comes in between 3 centimeter and 4 centimeter. जो measurement है it comes in between 3 centimeter and 4 centimeter, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हैं कि जो इसको अगर हम zoom करके देखेंगे तो ये जो B students, I am talking about the certain and uncertain number in a significant figures, because significant figures की जब बात करते हैं आप, तो उसमें सिर्फ आप मैक्सिमम वन अनसर्टेन नंबर को आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ए बी, और इस ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करना है, एल आपको मेजर करना है। वी हैव टेकन दिस ऑर्डिनरी स्केल, सेंटीमीटर स्केल, ओके, 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, ओके। एक डिवीजन का साइज आपको मालूम है, इट विल बी 1 mm, बिकॉज द लीस्ट काउंट इज 1 mm योर, और 0.1 सेंटीमीटर ऑफ दिस स्केल हियर। तो स्टूडेंट्स, you can measure up to 3.1 centimeter, okay, to this object। इस ऑब्जेक्ट को आप जो है 3.1 तक मेजर कर सकते हैं। 3.1 के बाद फर्दर जो इसका जो स्मॉल लेंथ है, you cannot measure this length actually, because the least count this scale measure up to 1 decimal place। तो 1 decimal place तक आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 3.1 और 3.2 के बीच में ठीक है कोई स्केल नहीं है, कोई भी मार्क यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हाउ यू कैन डू हियर, यू कैन जस्ट सपोज दैट दिस स्मॉल लेंथ विल बी 0.05। ये जो स्मॉल लेंथ ली है आप, इसको आप सपोज कर सकते हैं, इट इज सपोज टू बी इक्वल्स टू 0.05, ओके। तो व्हेन यू टेक द कंप्लीट लेंथ, it becomes what 3.15। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 3.1 में, it becomes what 3.15। तो now the measurement is 3.15, but in this measurement two numbers, this 3.1 is the certain value, but this 5 is not certain, it is the uncertain actually, क्योंकि जो स्केल है आपका वो 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर नहीं कर सकता है। आपका जो स्केल है वो ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है। इसलिए यहाँ पर जो ये लास्ट नंबर 5 है, इट इज अ अनसर्टेन नंबर, बट सिग्निफिकेंट फिगर सेज दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट अबाउट व्हिच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट व्हिच इज अनसर्टेन आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो इसमें हमने देखा कि 3.1 these two numbers are certain, and 1 additional number which is uncertain you can also include when you are counting the significant figures, significant digits, okay। तो आप इसको इसमें include कर सकते हैं, only one additional digit, okay। तो this is about the significant figures actually। तो स्टूडेंट्स, इसके रूल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से हम किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। These are the rules for counting the significant figures, significant digits। The first rule is all non-zero digits are significant। स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब
सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जैसे यहाँ आप देखिएगा 42.3, ठीक है, तो here are 3 significant figures because all these digits are non-zero actually, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 5 it having 4 significant figures, 128.25 gram, it having 5 significant figures, okay. Similarly, second rule is all zeros between two non-zero digits are significant. अगर जीरो किन्हीं दो non-zero digits के बीच में आता है, ठीक है, if the zero comes in between two non-zero digit, then that will be considered as significant number, significant figure. Here 107, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरो comes in between 1 and 7 and 1 and 7 are the non-zero digit. इसी तरह से आप ये देख रहे हैं 0.004 and these two zeros comes in between 7 and 4 and 7 and 4 are non-zero digits. So you can say this measurement having 6 significant figures. You will also consider these zeros because they comes in between non-zero digits. Okay, इस तरह से आप देखिएगा second example लिया हमने 5.604 gram. This measurement having 4 significant figures. Okay, 1 2 3 4, यहाँ पर जीरो भी काउंटेबल होगा, इसको भी हम काउंट करेंगे। इस तरह से जो नेक्स्ट रूल है आपका 3 लीडिंग जीरोज, यानी जब जीरो स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, उस वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं व्हेन यू आर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 0.543, यहाँ जीरो देख रहे हैं स्टार्टिंग में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है और उस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, तो इसलिए दिस जीरो विल नॉट बी काउंटेबल एक्चुअली। तो हियर दिस हैविंग ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह से नेक्स्ट में आप देखिएगा 0.045, इट हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद में आते हैं फोर्थ रूल पर, ट्रेलिंग जीरोस, यानी जो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आते हैं, जो एंड में जीरोस आते हैं, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के, उसको हम काउंट करते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है एक्चुअली, अगर आप डेसिमल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर नंबर डेसिमल है तब उस केस में वो जीरोस काउंटेबल होंगे if your number is decimal number, और if your number is not decimal actually नॉन डेसिमल नंबर है, तब उस केस में जीरोस काउंटेबल नहीं होंगे। जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो काउंटेबल नहीं होंगे। जैसे इसमें आप देखिएगा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, ट्रेलिंग जीरोस आर द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 4.330, तो हियर बिकॉज दिस इज अ डेसिमल नंबर, यहाँ डेसिमल पॉइंट आप देख रहे हैं 4.330 है, ठीक है, सो दिस ट्रेलिंग जीरो विल बी कंसिडर्ड एक्चुअली। Okay, so this measurement having 4 significant figures. स्टूडेंट इस केस में भी आप देख रहे हैं ये भी डेसिमल नंबर है 343.000, ठीक है, इसमें कितने होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बिकॉज इट्स अ डेसिमल नंबर। लेकिन सपोज करिए अगर एक नंबर है जो कि डेसिमल नहीं है, मैं एग्जांपल लेता हूं उसका, सपोज करिए एक नंबर आपको गिवन है 4350000, ये एक डेसिमल नंबर नहीं है, नॉन डेसिमल नंबर है, तब इस केस में ये जीरो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे विल नॉट बी कंसीडर्ड एक्चुअली एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस वैल्यू, दिस मेजरमेंट हैविंग ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें 2 केस होंगे, एक तो नॉन जीरो डेसिमल एंड नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इन केस ऑफ डेसिमल नंबर you will count the zeros also, but in case of non-decimal number you will not count the zeros, okay, trailing zeros in case of, okay, for the significant figures. Now fifth rule is what? In exponential notation the numerical portion gives the number of significant figures. इस तरह से अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है, साइंटिफिक फॉर्म में आपको दे रखा है इसमें, ठीक है, 1.32 into 10 to the minus 2, तो इसमें इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा, यानी कि जो पावर्स में जो टर्म होगा, जो पावर्स है एक्चुअली उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 10 to the minus 2 है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे व्हेन वी आर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। इस तरह से 10 to the 4 है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये याद रखिएगा, इस तरह का अगर आपको मेजरमेंट दिया हुआ है तो उसमें पावर्स को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 435 10 to the power 3,
ठीक है। अगर इस वैल्यू को आप ऐसे लिखेंगे तब भी आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, ठीक है, क्लियर। लेकिन सपोज करिए अगर इसी वैल्यू को आप ऐसे लिखते हैं 4350000 और डेसिमल पॉइंट आप यहाँ लगाते हैं, 30 लगाते हैं, तब इस केस में इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक बार और काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अब ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स,